ये बेसिकली वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन डिपार्टमेंट 18% इंटरेस्ट लेने के बाद 200 300 रुपया पेनल्टी लगा देता है। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। Recently, our finance minister Nirmala Sitharaman ji has asked for suggestions from the people regarding the budgets and the taxations. And I have written to her about certain taxation measures that should be taken to make things smoother and how effective it can be, which I am sharing with you. So I have given an example wherein I say a taxpayer wishes to pay around 9 lakh rupees, but his chartered accountant tells him that either you can pay 5 lakh or you can end up paying 15 lakh, but you can't pay 9 lakh. But as far as the taxation assessment is concerned for the taxpayer, he ideally needs to pay 9 lakh as taxation. But now he has to choose between 5 lakh and 15 lakh. Anybody would choose 5 lakh. Now the question is that when he chooses 5 lakh rupees, there is an element of risk, which obviously the chartered accountant would be covering. But equally importantly, the government of India has lost 4 lakh rupees from a citizen who honestly wanted to pay his tax, but he was not able to pay his tax because he had no other option, or he had to pay 10 lakh extra, or 9 lakh is what he wanted to pay, so 6 lakh extra, which obviously pinches his pocket. Now the question is, why has this happened? This has primarily happened because over and above the realistic or the real value of taxation, there are a lot of penalties and interest, etc., which have been accumulated on and above that, and the figure has reached 15 lakh. Now the question is, who is responsible for that? We can say COVID. But besides COVID, there were other reasons. And the first and the foremost thing is, how did the chartered accountant bring that 9 lakh figure to 5 lakh figure? So this is where he used certain indexations wherein he could use them for the advantage of his client. Now the question is, and that is where we need reforms, that we should not have unnecessary indexations in taxation. जैसे मोदी जी ने 1200 acts he's already repealed, and he's planning to repeal another 1800 redundant acts. Similarly, various complex indexations which have been incorporated in taxation should be removed. कहने का मतलब है, हर आदमी के लिए टैक्स जो पे करना होगा वो बहुत ही आसान होना चाहिए, कि उसको पता भाई इतना निकलता है, ये है। जिस तरह इन्होंने फॉर्म सरल करे हुए हैं, वैसे ही इनको टैक्सेशन के इंडेक्सेशन वगैरह को हटाने की, रिपील करने की बहुत जरूरत है। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक आदमी बड़ी जिम्मेवारी से अपना ऑनेस्टली टैक्स पे करता है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जब वो प्लानिंग करता है, जब वो फाइल करता है, तो उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको 10 to 20% रिबेट देना चाहिए एज एन इंसेंटिव कि लास्ट ईयर कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में उसने जो अपना टैक्स है वो ऑनेस्टली पे किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, जहां पे आप लोगों को चोर ना समझे, जहां पे आप लोगों के ऊपर तलवार गले पे ना रखे, बट आप लोगों को रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स दे। हम लोग के यहाँ पे टैक्सेशन में क्या होता है? पनिशमेंट, और ये पनिशमेंट थिंग शुड गो, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव। पर इंस्टेड ऑफ गिविंग रिवॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? वो पेनलाइज करती है। और मुझे ऐसा लगता है इनको बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेनल्टीज से मिलते हैं और इंटरेस्ट से मिलते हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल चीज है। ये ऐसे ही हुआ, आपने बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस से कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज ली, कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज जैसे वॉशिंग मशीन, एसी लिया, और आपका 1200 का EMI बाउंस हो जाता है,
तो वो क्या करते हैं, 1200 के ऊपर वो 500, 600, 700 चेक बाउंसिंग चार्जेस लगा देंगे और उसके अलावा जो लोन बोरोड है उसके ऊपर पेनल्टी अलग से लगा देंगे। इसका मतलब है 1200 की ईएमआई के ऊपर आपको 1000 रुपया एडिशनल पे करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी बन जाती है। और वही चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लार्जर स्केल पे मैक्रो लेवल पे करती है, जो कि रुकनी चाहिए। पीपल शुड बी अवॉर्डेड एंड नॉट पनिश। आप देखिए 1200 की कोई ईएमआई दे रहा है और उसके ऊपर 1000 का ये जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये लोग उसके ऊपर पनिशमेंट लगा देती है, तो ये इन लोगों का एक तरह से मुनाफा हो जाता है। इसके ऊपर मैंने आरबीआई को 2-3-4 साल पहले एक आरटीआई भी लिखी थी और मैंने कहा था कि आप लोग के ऊपर कोई रेगुलेशन आप लोगों ने बैंक्स के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर लगाया हुआ है कि दे कैन नॉट चार्ज मोर देन दिस अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज। सो आरबीआई से नो, वी हैव नो regulation or we have not imposed any restrictions on banks and NBFC, which is sad. It goes on to show connivance basically. So our finance ministry has to see that similarly people who pay taxes, they are not punished by overimposed penalties and interest, which I shall also be talking little later. Third, अगर आपने डॉक्टर के पास जाना होता है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं और मान लीजिए वो डॉक्टर आपका ठीक से चेकअप नहीं करता या आपको टाइम नहीं देता या आपका फॉलो अप पे आपको इग्नोर करता है, आपको फिर टाइम नहीं देता, आप क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली बहुत इजी है, आप किसी और डॉक्टर को देखेंगे, यू विल गो एंड सी अनदर डॉक्टर। बट द क्वेश्चन इज व्हेन इट कम्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स and when it comes to lawyers, can you keep changing your CAs and lawyers at the drop of the hat? Of course not, you can't. आपके लॉयर्स के पास आपकी 5 साल की 10 साल की किताबें हैं, उसको सारी आपकी अकाउंटेंसी मालूम है। अगर आपका लॉयर आपको टाइम नहीं दे रहा है और उस वजह से आपका टैक्सेशन के अंदर डिले हो जाता है, आपको पेनलाइज करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपका सीए आपको टाइम नहीं देता है, अगर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉलो अप करते हैं पर वो आपके बुक ऑफ अकाउंट को मैनेज नहीं कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 10 साल से आपके साथ है और अब आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, आप किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो नहीं जाएंगे कि जी ये मेरे 10 साल के अकाउंटिंग है, मैं ये काम करता हूं। ये आपके ऊपर अपने आप एक एक्सप्लेनेशन की लायबिलिटी हो जाएगी कि उसको सारी चीजें समझाना। तो हर आदमी अपने सीए और लॉयर्स को चेंज नहीं करता जैसे डॉक्टर्स को चेंज करता है। अब वो वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपना काम टाइम पे नहीं कर रहा, काम सही नहीं कर रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स जो फॉलो अप है उसको इग्नोर कर रहा है और उसकी वजह से आपके ऊपर लायबिलिटी, आपके ऊपर पेनल्टी लीवी हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप हैं, बट क्या आपको होना चाहिए? क्योंकि आप तो नहीं चेंज कर सकते अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स के, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं चेंज कर सकते, आप तो उसके पीछे भाग सकते। तो रिफॉर्म्स होने चाहिए कि अगर एक टैक्स पेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाता है मैंने इतने ईमेल्स लिखे, मैंने ये फॉलो अप किया मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ और उसने मुझे गाइड नहीं किया या उसने नहीं बताया या उसने मेरी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, इस वजह से मेरे ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वो चीज माननी चाहिए। और मैं अलग बात, वो अलग चीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इनकी एसोसिएशन के साथ कैसे डील करती है वो अलग चीज है। बट अ कॉमन मैन, अ टैक्स पेयर शुड नॉट बेयर द ब्रंट जस्ट बिकॉज द सीए डिड नॉट डू हिज वर्क प्रॉपर्ली। फोर्थ पॉइंट, ऐसा देखा गया है, मान लीजिए एक आदमी है, वो पिछले 15-20 साल से 5 लाख से 15 लाख रुपया साल का कमाता है और वो एक साल के अंदर बिकॉज उसको कोई विंडफॉल हो जाती है, कहीं से प्रॉफिट आ जाता है, कुछ भी हो जाता है जहां पे उसकी इनकम 50 लाख से ऊपर चली जाती है। तो सवाल ये है 50 लाख से ऊपर चलेगी तो 30% टैक्स स्लैब में तो वो आ ही जाता है, बट बिसाइड्स दैट उसको 10% सेस वगैरह और भी चीजें पे करनी पड़ती हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक आदमी को जो 5 से 15 साल हैंड टू माउथ था, जो अपना घर देख रहा था, उसकी विंडफॉल होती है, तो क्या उसका टैक्स ब्रैकेट, तो आप चलिए वो टैक्स दे देगा, बट उसके बाद आप उसको कहेंगे जी अब आप अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, अब अपने फलाने अकाउंट्स दिखाओ, ढमकाने अकाउंट्स दिखाओ। मैं ये सजेस्ट करता हूं किसी भी आदमी
जिसकी 50 लाख से ज्यादा की इनकम 2 कंसेक्यूटिव साल आती है, सेकंड कंसेक्यूटिव साल आती है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिटेल्स मांगे। बट एक साल एक आदमी हैंड टू माउथ रहता है और एक साल के अंदर उसके अगर विंडफॉल हो जाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि सडनली आप उसकी गर्दन पकड़ना शुरू कर दे। और जब तक वो अकेला था, बेचारा अकेला लड़ रहा था, तब तो आपने उसका कुछ नहीं, आप उसको देखा भी नहीं। आपने, गवर्नमेंट वैसी हमारी सपोर्ट नहीं करती है फाइनेंशियली लोगों को, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल किसी का 50 लाख से ऊपर हुआ तो आप उसको छोड़े ही ना, आप 10 उसके ऊपर लायबिलिटीज लगा लें। और रिफॉर्म्स के लिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए जो मेरा लास्ट पॉइंट है, ये बेसिकली वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन डिपार्टमेंट 18% इंटरेस्ट लेने के बाद 200, 300 रुपया पेनल्टी लगा देता है पर डे की। 200, 300 फाइलिंग की नहीं, 100, 200, 300 रुपीज पर डे, इट गोज अप टू 4 अंडर वेरियस सेक्शंस। तो ये जितनी पेनल्टीज है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, दिस पेनल्टीज शुड गो। तो ये तो वही बात हो गई, जो एक कॉर्पोरेट है जो पैसे कमा रही है वो तो टाइमली टैक्स पे कर देती है। अब जो आदमी टैक्स पे टाइमली नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो प्रोफेशनल है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। अब सवाल ये है, जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको कहेगा भैया तो पेनल्टी भी देगा तो इंटरेस्ट भी देगा, इंटरेस्ट भी तो 18% देगा। अब सवाल ये है, ये तो वही बात हो गई, बैंक उन्हीं को लोन देता है जिन लोगों को इतनी लोन की जरूरत नहीं होती, जिनकी बुक्स अच्छी होती हैं। वो आदमी जिसको लोन की जरूरत होती है उसको बैंक लोन नहीं देता, क्योंकि उसकी बुक्स उतनी बढ़िया नहीं होती दिखाने के लिए कि उसको लोन पे अप्रूवल मिले। तो वही चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही चीज हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है कि जो आदमी ऑलरेडी पे कर रहा है, तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह क्या करेगा, वो आगे जाके अपने घर में या तो ज्वेलरी को मॉर्गेज करेगा या गाड़ी बेचेगा, कोई ना कोई अपना एसेट निकालेगा। अब सवाल ये है, जो पैसा वो मॉर्गेज वगैरह करके पेनल्टी और इंटरेस्ट, मैं टैक्स की नहीं बात कर रहा, पेनल्टी और इंटरेस्ट में पे करता है, सोचिए अगर वो पैसा वो अपने काम के अंदर री इन्वेस्ट करे, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे, तो शायद उसका काम दोबारा चल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमारी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पेनल्टीज, एंड दीज पेनल्टीज आर ह्यूमंगस, आई एम रिपीटिंग, ऑल दीज शुड गो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स के ऊपर अपनी गाड़ी चलानी चाहिए, ना कि लोगों के इंटरेस्ट और पेनल्टीज। और अगर आपने इंटरेस्ट लेना भी है लोगों से, आप 7% इंटरेस्ट लीजिए, जो आज की डेट में बैंक, अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं 6.5-7% देता है ना बैंक, तो सिमिलर अमाउंट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड नॉट 18%। एक आदमी जिसके पास वैसी टैक्स देने के लिए नहीं है, जो हैंड टू माउथ है, उसके बाद आप उसको इतना निचोड़ लेते हो, तो आप तो उसको खत्म कर रहे हो। सो दीज 4-5 रिफॉर्म्स आर वेरी एसेंशियल। लाइक आई सेड, द पेनल्टीज शुड गो अवे, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर नॉट डूइंग देयर जॉब ग्रेट should be responsible. They need to abolish various acts and rules and what all things they have put to complicate. और one more thing, ये जो complication के जो बहाने होते हैं, जो acts वगैरह रखाए जाते हैं, ये बेसिकली करप्शन को बढ़ावा ही देते हैं, ये लूप होल्स को भी निकालते हैं, जिसकी वजह से आपका काम भी हो जाए और एक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका काम भी हो जाए। So my request to Finance Minister of this country is, please bring some concrete, great reforms. Thank you so much.